Hello, everyone. Welcome to UAE Achievers Talk Show Season 3. And I'm back again with another exciting episode with a super special guest. His name is Mr. Pankaj Gupta. He's the director at SMC and also owns the entire Dera region at BNI. Welcome, Pankajji. How are you? Very well, Anil. Thank you very much for inviting me here today. Thank you so much. I'm extremely honored you have given us your special time today to be in the show. Always there. I know Pankaj Gupta, the director at SMC. I know Pankaj Gupta, the executive director at BNI Dera region. But I want to start from starting. I want to know you, Pankaj, the person, right? How was your growing up years? I was the naughtiest child in my family. I can say I was the youngest one and the naughtiest one. If you say my childhood, I was the most loved one, being the younger one, my eldest sister, then middle is a brother, and myself. My father, he's having his own business. He was having his own business. My mom used to teach me like every day, and I have some sweet memories from there. Obviously, being naughty, those sweet memories are carrying. Study-wise, naughty but average, right? So I would say, yeah, initially 60%, that's the kind of thing. And slipped through it and become very, very naughty. And in 10th pre-board exam, I failed. Oh, And that's the first time ever I failed. And my friend is telling me, I was okay, right? My friend says, Pankaj, you failed. Are you mad? No, you failed. You got 25%. Okay, that was a shock. And that was an awakening call because I never thought that I can fail. yeah. And came back home and told my dad, I failed. He said, okay, and what do you want to do? I said, no, I want to change the entire thing. And I remember, on our home, on the roof, I set up two light bulbs of 500 watts that time on two corners. And I would study in the night, taking the rounds on the roof, so I don't sleep. And then I finally passed my 10th grade with good numbers. Wow. And first thing I did, I told my dad that I want to change my school. Because until then, I used to feel society matters. तो अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले एक शेर सुना अच्छा. कि कौन कहता है कि संगत से फर्क पड़ता है, ऐसा होता तो कांटों को भी महकने की तमीज आ जाती. वाह. हम हमेशा अदर वे अराउंड क्यों देखते हैं? तो लेकिन मैंने स्कूल चेंज किया नोटी तब भी रहा और बहुत नोटी रहा, लेकिन 12th ग्रेड पास करने के बाद कॉलेज पहुंचे, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से पास किया. शैली मेरे साथ में थी वहाँ कॉलेज में इन अ डिफरेंट स्ट्रीम. Okay. And I passed and started my business very early because we had a love marriage. Got married at an age of 21 and a half. Wow. Right? And on the first anniversary, my elder son was cutting the cake with us. So just imagine being father at 22 and a half. Wow. So that's how my life had been. That's ups, downs. I have a lot of memories, right? And somehow, I don't know, it's crazy or what, my youngest memory is from the time when I was 18 months old. Wow. I possess that. I've not memory. heard that before. So, is like a scene. Even now, that memory is so vivid, like I remember it. So, what I'm seeing is that I'm sitting in front of a window. So those rod windows old time, and my hands are tied. Right, I can't go down, and I can see that the twinkles, like all the dark and दूर थोड़ी light दिख रही है. Wow. एंड फिर मेरे को याद है कि मैं किसी तरीके से वो खोल लिया है और अब मैं एक बेड पे हूँ ऊपर, जो पुराने ज़माने में खाट होती थी, उससे मैं लटक के छोटा हूँ तो नीचे उतरा हूँ, क्रॉल करते हुए मैं स्टेयर्स से उतर रहा हूँ. और वो पुराने घर की स्टेयर्स थोड़ी स्केरी होती थी, हाई, और उसमें एक टर्न था जो बहुत डार्क था, वहाँ पे मैं एकदम डर जाता था.
तो वो मेरे को फील याद है डर की. वाओ. एंड वहाँ से मैं नीचे आता था तो माई मॉम एंड आंटीज आर सिटिंग एंड दे वुड गिव मी एक आटे की चिड़िया. ठीक है, तो बना के देते थे एंड मैं खुश हो गया. ये मैंने जब बताया अपने बड़ों को कि मेरे को ना एक ये बार बार ना ड्रीम टाइप में रहता है मेरे, तो वो बोलते हैं आर यू मैड. ऐसे हाँ कहते हैं और कुछ याद है. मैं बोला वो जो मैं जिस बेड से उतरता ना वहाँ पे नीचे वो रेड कलर का फ्लोर था और उसमें वाइट फ्लावर्स बने हुए थे सेंटर में. बोलते हैं इट्स क्रेजी. यू नो व्हाई इट इज़ क्रेजी? बिकॉज मैक्सिमम 20 मंथ्स का जब था तब वो घर हमने छोड़ दिया. वाओ. तो माई मॉम टोल्ड मी, यू कैन यू बिलीव इट, यू वर सो नॉटी. और तो वो नीचे उतर के आता था, हमें डर लगता था गिर ना जाए. जॉइंट फैमिली थी तो खाना नीचे बनता था, रूम्स ऊपर थे, तो मैं तेरे को खिड़की से बांध देती थी. अब बांधती क्यों थी? अब कि तू नीचे ना आए. और इतनी जोर से भी नहीं बांधोगे कि तेरे को लग जाए, लेकिन तू इतना शैतान था, तू खोल लेता था. तो ये मेरी सबसे पुरानी मेमोरी है. वाओ. बहुत अमेजिंग है क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कि 20 महीने की मेमोरी, 18 महीने की मेमोरी. आप सोचें, हमने सुना तो ये है कि बच्चों को वॉर्म के अंदर से भी याद होती हैं चीज़ें. हाँ, बट आप नॉर्मली किसी से भी बात करेंगे तो वो बोलेगा मुझे 4 साल का याद है, 5 साल का याद है, मेरे को नथिंग ये बिफोर मेरी दैट. याद है और ये मतलब मेरे लिए भी ये फील अमेजिंग है. और मैं इस जो ड्रीम टाइप की मेमोरी है इसको मैं कभी मरने नहीं देता. दिस इज अ वेरी प्रीशियस पोजीशन फॉर मी कि मेरे को इतना पुराना याद है. वाओ. वाओ पंकज जी, अमेजिंग मेमोरी देयर. बट थोड़ा पहले हम बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ यू हैड हम्बल बिगनिंग्स फ्रॉम होम, फ्रॉम योर फादर एंड स्टफ लाइक दैट, ऑल द वे अप टिल रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस वन आफ्टर द अदर. ये थोड़ा सा बताइए कैसे हुआ. देखिए, अगर आप हम्बल बिगनिंग कहेंगे तो मेरे लिए ये था कि नॉर्मल थी लाइफ. बट माई फादर रियली स्टार्टेड वेरी हम्बल बिगनिंग बिकॉज माई ग्रैंड फादर he was a postmaster, head postmaster of Shahadra, right, which was a big post at that time. But he was trading into silver. And there was a big meltdown in silver, Texas brother story. And my grandfather died in that. My father was only 13 years old. All the properties we had, like even the home where my parents were, my father was living and his brothers were living, was gone in mortgage. Oh. Right. So with that, my father started as a hawker. So outside his school, he would put a trunk and some pencil copies, and he started selling them. That was his start. And then the business, touch wood by the grace of God, the business grew to the level that we were the confidential printers for Delhi government. Wow. Right. So all the schools, if you are from Delhi and if you have studied Yes. in Delhi, Yes. most likely we were the printers of your question papers, Wow. which you wanted very desperately before the question, right? And like, so anything and everything which is intangible and you have touched in the school, tangible which you have touched in the school, was more and less supplied by us. Wow. So that's the kind of level it reached. By the time we grew up, the business was already in place. Yes, it was. So I don't feel that there was any kind of lacking in our childhood. Though when we grew up, we realized few things which were happening. So we understand it was moderate. It was moderate, but for us it was okay. And then we just grew and I started my first business when I was 19 years old. Wow. I still remember 17th March was the day. And it was Eid that day when I started assembling computers. Wow. Right, and along with that, I had a desktop publishing business. So office was there, so desktop publishing because family had printing requirement. So a lot of work would come from them. And additionally, I used to assemble computers. That's how I started. And just imagine a 19-year-old boy with an average income in that time around 30,000 rupees. Wow. Right. A lot of money for But that time. I earned and I spent. Like I would go on a date with Shelly, and the first thing we do is we'll go to a 7-star hotel and have a continental breakfast. And then we'll roam around, do things. So that's how I did. Got married very early, as I said, 21 and a half. Like the moment Shelly completed her graduation, even before the result came out, we got married. Wow.
How amazing. Take us through that personal journey with, because I've met Shelly ma'am personally many times and I know she's a wonderful, beautiful lady. But it's very interesting also for a love story to start at that point and then, be where you guys are today. Take us through that. No, see, being together, is it all love always? Yes, it is love. But there's a lot Initially, it remains like a Bollywood picture, right? Very fantastic. Yeah. And then love goes in deep, right? So in the roots, we love each other, we care for each other. बट फिर वो लव का वो फैशन शो ना बंद हो जाता. सही है. होता है हर कपल में, जितने पुराने लव होता है, लेकिन उसका वो दिखावा बंद हो जाता. तो मैं कभी, मेरे को कोई कपल मिलते हैं वैसे होते हैं, मैं बोलता हूँ यार एक काम करो, आज शाम को जा कर के ना जो गाना उस उम्र में सुनते थे साथ में, सिर्फ शांति से वाइफ के पास जाके बैठो और वो गाना प्ले करो, कुछ मत बोलो. तो वो धूल जो है ना वो थोड़ी हटेगी. ठीक है. क्या मैं खुद ये करता हूँ यार, रिस्क लेने में मैम से पूछना पड़ेगा. आप पूछेंगे तो वो बताएंगे नहीं करता. ठीक है. लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि मेरी एक स्टेट है जो NLP के अंदर में सीखी थी, कॉशियसली अवेयर. मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है. मैं आपके पास बैठा हूँ और अगर मेरा पैर नीचे हिल रहा है तो मुझे पता है कि मैं पैर हिला रहा हूँ. तो वो अवेयर होना ना, अपनी चीज़ों का अवेयरनेस होना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि वो है तो आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली करेक्ट भी करोगे. वो मेरे साथ हमेशा रहा ज़िंदगी में कि बहुत सारे अप डाउन्स देखे. जैसे अभी मैं बात करूं कि आई गॉट मैरिड, बहुत अच्छी कमाई थी. एक पॉलिसी चेंज आई गवर्नमेंट की. ओके. और एक कंपनी आई PCL करके. अच्छा. दिल्ली कंप्यूटर मार्केट के अंदर. एंड जो हमारा कॉस्ट होता था असेंबल करने का, उससे नीचे प्राइस पे इन्होंने मार्केट में बुक करना शुरू किया. अब ये 2 साल में इस कंपनी ने लगभग सभी कंप्यूटर असेंबलिंग कंपनीज की कमर तोड़ दी. मेरे को भी बहुत चैलेंज आया. और शेली वॉज प्रेग्नेंट विद माई फर्स्ट बॉय एंड आई रिमेंबर अ डे व्हेन शी आस्क्ड मी, मेरे को डोसा खाना है. हम दासा प्रकाशा जाते थे खाने के लिए. एंड आई सेड यार शेली पैसे नहीं है. रीच टू दैट लेवल. एंड seen ups and downs. The good thing is she was always standing by my side. Right? That whatever it is. And yesterday somebody asked me that, Pankaj, you've seen downs and ups. Like, what is the key? Said perseverance. If I knew that I am the one to bring the bread on the table, I have never seen a work down or up, I would do the work. Right? If I need to bring the table, bread on the table, I'm not getting the work. If even I have to, put something on my shoulder and drop it, like do the coolie work for 2 days and get that bread, I'll do it. I've got no shame in that. Nobody is gonna bring bread to you. I have had situations where people came to me and said, पंकज भाई आपने अपनी एस्टीम बेच दी और आप 800 लाए हो, अच्छा नहीं लगता. मैं भाई मेरे को कोई परेशानी नहीं है, तू ला दे मेरे को एस्टीम, तू मर्सिडीज ला दे, मैं चला लूँगा. मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो मेरे घर पे आके तकादा करे. बस वो सेल्फ प्राइड में मैं मारूंगा नहीं. मेरी प्राइड ये है कि मेरा सर ऊंचा होना चाहिए, सर ना झुके कहीं पे, बस इसमें प्राइड है, बाकी किसी चीज़ में प्राइड नहीं. You're so inspiring in many ways, Pankaj ji, और I'm sure expats of की पूरी community will get very very inspired today listening to your journey, your story. थोड़ा और बात करते हैं now about your kids. I know you have 2 handsome boys and now a daughter-in-law as well. Yeah. Yes, let's talk a bit about kids. I have 2 boys. Mudit is the elder one. Nitish is my younger boy. Mudit has now turned 29. Wow. And Nitish is 23. My daughter-in-law name is Adrisha Sarkar. So Mudit is a senior software engineer, works for Google. Nice. He had always been a very focused child. Right? Very, very focused child. And yeah, God been kind. He deserved where he is today. Nitish did his graduation from UC Davis. Okay. Right now he's working in India into a startup company. So he had this dream, I want to work in a startup. I don't want to work in a big company. I want to work in a startup. Or I want to start something on my own. So he got a chance and he's working in a startup company.
Let's see what is their road forward for him. Looks like the entrepreneurial Kida there. Yes, he has. Yeah. He has that. He doesn't wanted to do like this. So I said, okay, he started. Amazing, amazing. Lovely family, and I just hope and pray that you all, keep flourishing the way you guys do. आप entrepreneur थे, फिर आप multiple businesses कर रहे थे, फिर आप author बन गए. So, ये कैसे हुआ? First moment बताइए पहले. How you thought I'll write a book. लेकिन क्या होता है कि जब BNI में आप आते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, और वो देखते हो तो आपको उमंग जागती हैं, ठीक है, एस्पिरेशंस आती हैं. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा डॉक्टर माइजनर साहब तो वो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन और लोगों को भी देखा, अच्छा इन्होंने किताब लिखी, यार मैं भी लिख सकता हूँ. तो मैं हमेशा ऐसे सोचता रहता था, यार लिखूँ क्या. तो पहले सोचा अपनी ज़िंदगी पे लिखूँ. बोला यार बात सुन, तू है कौन भाई. मतलब सीधा बोला, भाई तू है कौन, तू अपनी ज़िंदगी पे लिखेगा ऑटोबायोग्राफी, कौन पढ़ेगा उसको. और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने शुरू भी करी थी. अच्छा. एक मेंबर थी, उनके थ्रू मैंने शुरू भी किया था कुछ काम इस पे, बट देन बोला यू नो वन, राइट. तो फिर मुझे याद है मैं एक ग्लोबल कन्वेंशन में बैठा हुआ था, तो आयुष बंसल से मेरी हाई हेलो चल रही थी. उसने मिलवाया मुझे कि यार ये देख हमारी जयपुर की मेंबर हैं एंड शी इज़ अ पब्लिशर, अंशुल. तो उन्होंने बोला मेरे को कि यार पंकज जी उसमें क्या है, लिखो. मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता क्या लिखो. कहते हैं ब्लॉग्स लिखते हो आप. मैं हाँ लिखता हूँ. कहते तो एक काम करो ना, 10 जो चैप्टर है आपकी बुक के, उनके टाइटल सिर्फ लिखो, सिर्फ टाइटल, क्या नाम होगा उसका. अच्छा. 10 टाइटल लिखो, ठीक है. अब वो आपकी मर्जी है, आप उन्हें स्मॉल स्टोरीज लिखो, पूरी एक किताब में टाइटल पेज, बस टाइटल लिखना है आपने. अभी क्या नाम होगा उस चैप्टर का, 10 टाइटल लिख लेंगे. फिर उस पर आप एक एक ब्लॉग लिख लेना, ठीक है. अब ब्लॉग आप लिखोगे मान लो 1 पेज का पहले, फिर उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, करते करते 10 पेज का एक ब्लॉग होगा, 100 पेज की किताब हो जाएगी, लिख लेंगे. वाह यार अच्छा है. तो मैं वापस आया और मैं एक्चुअली आकर के मैंने नहीं किया. तो उनका मेरे को मैसेज आता है, पंकज जी लेट्स डू अ 1-to-1. मैंने कहा अच्छा. तो मैंने करी उनसे 1-to-1 जूम पे. उन्होंने बोला पंकज जी डू इट. अच्छा चलो ठीक है. उस दिन मैं शाम को बैठा और लकीली वीकेंड था 3 दिन का. मैं जब 3 दिन बाद उठा तो मेरी पहली मैन्युस्क्रिप्ट रेडी थी. वाह. मैंने ना सिर्फ टाइटल लिखे, और जब टाइटल लिख रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं तो मेंटोर हूँ, मेरे को तो लोगों को इंस्पायर करना है, मैंने तो यही सीखा है. तो क्यों ना मैं इंट्रोस्पेक्शन से शुरू करूँ. तो सबसे पहले मैंने किसी भी इंसान को अपने अंदर झांकना, अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपनी उम्मीदें हैं जो मर रही हैं, ठीक है, जो मैं करना चाहता हूँ उसको अवेयरनेस में लाना. फिर उसमें मैं किस तरीके से, क्या ऑब्जेक्शन होगी. मैं अपने दिमाग में सोचता था जनरली क्या ऑब्जेक्ट करते हैं लोग. जैसे वो बोलेंगे, किसी को पूछो आपकी वैल्यूज़ क्या है, नहीं पता. अब मैंने वैल्यू माइनिंग सीखी है कोएक्टिव कोचिंग के अंदर में, मैंने उसका चैप्टर डाला. अच्छा. फिर बात आई कि अब क्या कहेगा आदमी, सर टाइम नहीं है. भाई टाइम मैनेजमेंट भी तो सीखी है, उसका चैप्टर डाल दिया. सही है. ठीक है. तो इस तरीके से करते करते मैंने पहले आदमी को पॉलिश किया. तो मेरे दिमाग में बॉल बेयरिंग था कि अगर उसकी जो बॉल रस्टेड है तो मैं बेयरिंग में सेट भी करूँ तो वो चलेगी नहीं. सही है. तो बुक के पहले जो 6 चैप्टर हैं वो एक इंसान को पूरी तरह पॉलिश करके तैयार कर देते हैं, और जो 6 चैप्टर है वो है डीक्लटरिंग. ओके. कि भाई कर लिया तैयारी. अब वो बहुत पुराने टाइम से ना बहुत सारे प्रेजुडीज, और डीक्लटरिंग एक एक्सरसाइज थी जो कि इज़ अ मॉड्यूल इनटू कोएक्टिव कोचिंग. तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वार्डरोब क्लीन करता हूँ, सब कुछ क्लीन करता हूँ. भाई अपना दिमाग कब साफ करेगा. ठीक है, वो उस जमाने में मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए मुझे ये नहीं करना. ये आज कैसे मदद कर रहा है तेरी, काम आ रहा है नहीं आ रहा है. और लकीली वो बड़े एक फ़नी इंसिडेंस हुआ कि मेरे फादर जो हैं घर का वाइट वॉश हर साल कराते थे. ओके. और हम सारा सामान बाहर निकालते थे, फिर देखते थे क्या काम का है क्या काम का नहीं है, क्या रिपेयर हो सकता है, ठीक है, क्या फेंकना है, किसको कहाँ रखना है, वापस रीअरेंज किया जाता था. और उनका जो हमारा जो वॉश मतलब ये जो पेंट करने वाला बंदा था उसका नाम था करमचंद. और हर साल वही आया. ठीक है.
तो जब मैंने बुक लिखने बैठा तो मैंने कहा बोला ये करमचंद नहीं था भाई, ये तो हमारे कर्मों का हिसाब दिखवाने वाला था, कर्माचंद था ये। सही। तो मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि वो नाम सोचो कितना पावरफुल था। तो मैंने वही उसी तरीके से डीक्लटरिंग करी कि भाई जो कुछ है बाहर निकाल ले, वाइट वॉश करते हैं। या तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे, या रिपेयर करेंगे, ठीक है, या संभाल के रखेंगे। अच्छी चीज़ थी भाई, अरे ये तो छुप गई थी, वापस लाओ। तो वो डीक्लटर करके और फिर मैं मैक्सवेल साहब की शरण में, क्योंकि मैंने जॉन मैक्सवेल टीम कोच का भी एक सर्टिफिकेशन करे हुए हैं, अच्छा। तो वहाँ से मैं उसको लेके चला कि अब व्यापार सोचते हैं, Nice. अब प्लानिंग सोचते हैं। वो प्लानिंग करते हुए उनको पूरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तक जो भी सीख मैंने यहाँ से सीखी, तो आप समझेंगे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिखा। मैं बोला भाई जो जो मैंने सीखा उसको जिस तरीके से मुझे लगा कि अगर मेरे को किसी को मेंटर करना है तो कैसे करूँगा, वो एक मैंने बुक लिख दी। वाह। बुक लिखी, फिर अंशुल के पास गई, ऑब्वियसली उन्होंने उसको रीड करा, उन्होंने मुझे फीडबैक्स दिए। तो करीब 8 महीने बैक एंड फोर्थ चला ये। और फिर इसमें आया कि यार इलिस्ट्रेशंस जाने हैं। अब मैं जहाँ इमेजेस आती है ना वहाँ मैं बहुत टची हूँ। इमेज जो मेरे दिमाग में आ गई वो मुझे चाहिए। तो इस पूरी किताब में मोस्ट ऑफ द इमेजेस मैंने ड्रॉ करवाई वाह। कि नहीं मेरे को यही चाहिए। और वो इमेजेस मतलब मैंने रफ ड्रॉ करी, फिर फाइनल ड्रॉ कराई कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड द बुक बीइंग अ जर्नी। सो आई थिंक अभी ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा दे वांट टू नो कि ये इंटरेस्टिंग सी बुक जो आपने बताई है जर्नी की, अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशंस, अलॉन्ग विद दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ यू बिकेम एन ऑथर। आज मुझे खरीदनी है बीइंग, कैसे खरीदूँ मैं? बीइंग इज अवेलेबल ऑन अमेजोन ऑल्सो, Okay. ठीक है। एंड आई डोंट इवन माइंड, आप मेरे को बोलो, मेरे को मैसेज करो, ठीक है। किसी को भी मेरे को अप्रोच करना है, pankajgupta.me मेरी साइट है, ओके। वहाँ पे व्हाट्सएप का बटन दबाओ, मैसेज आ जाएगा। I'll send you. pankajgupta.me guys, but please go to Amazon and you can buy a copy as well. आपकी दूसरी बुक के बारे में बात करते हैं। लेकिन दूसरी बुक क्या हुआ कि मैंने मैड्रिड से आया, तो मैड्रिड में डॉक्टर माइजनर साहब ने को क्रिएशन पे लेक्चर दिया। बिल्कुल। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि कुछ सीखा तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, और इम्प्लीमेंट करे बिना मैं उसे छोड़ूंगा। तो मैं आया और मैं बहुत इंस्पायर्ड था, आयुष बंसल 1000 मेंबर, ये वैसे ऐसे करता। तो मैं आया और मैंने एक टीम तैयार करी। मैंने यूएई के अंदर में एक चैप्टर लॉन्च किया जो स्टार्ट टू एंड 2 हफ्ते में किया। कैसे किया? को क्रिएशन से। क्योंकि मेरा एक सपना है कि अगर मेरे रीजन में आज 300 मेंबर हैं, ठीक है, मेरे जीते जी नहीं तो मेरी डेथ विश पे कर दें, वो एक दिन इकट्ठे खड़े हो जाएं और बोलें हमें एक एक मेंबर इंडक्ट करना है और रीजन डबल कर दें। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट अ ड्रीम। तो मैं कल ही एक न्यूज़ मैंने कहीं सुनी कि एक आदमी था जो बड़ी सही जिया है, लेकिन उसने अपनी फ्यूनरल पे पता है क्या करवाया? क्या? उसने हेलीकॉप्टर से रोज पेटल्स के साथ में पैसे डलवाए। उसकी तमन्ना देगी मैं पैसों की बारिश करूंगा। आज की न्यूज़ बताता हूँ, मेरी बड़ी तमन्ना है कि कभी मैं इस स्टेज पे हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा हूँ तो बोलूँ गाइस ऑन मी। तो ये कल जो मुझे उनका नाम लेना तमीज में नहीं आता है, द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई एंड क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, ये दोनों लोग किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे इन्होंने जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सबका बिल पे ऑफ करके ये गए हैं। तो जब लोगों ने बिल मांगा बोला नहीं दैट्स पेड बाय द प्रिंस। तो कहीं एक ऐसा हो गया आप कह सकोगे यार इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी। वाओ। तो जो हम दूसरी बुक के बारे में बात कर रहे थे विच इज माई डेट्स विद SME ओनर्स, तो मैं उस पर वापस आता हूँ। जो लेजेंड्स में मैंने एक थीम रखी जी, कि जो मेंबर्स मेरे साथ इस लेजेंड्स को लॉन्च करने के लिए को क्रिएशन में जुड़ेंगे और उन 2 हफ्तों में अगर उन्होंने 2 मेंबर इंडक्ट कर दिए तो मैं 1 साल के लिए उनको बिजनेस कोचिंग दूँ। वाओ। Once a month, half day, I will spend with that team to solve business problems. वाओ। That was my give back to them. तो आप मेरे लिए कर रहे हो। और ये टीम बड़े अलग तरीके से सिलेक्ट करी थी। तो यहाँ जब मैं मिलता था तो मैं आपसे पूछूंगा अनल एक बात बताओ, जब आप पढ़ रहे थे स्कूल में, टाइम टेबल टाइम शीट आने के बाद पढ़ते थे या पूरे साल पढ़ते थे?
आप पूरे साल पढ़ते थे? पूरे सर। अगर आप पूरे साल पढ़ते तो आप मेरी टीम के लिए क्वालिफाई नहीं करते हो, क्योंकि फिर आप ना साल में एक मेंबर लाओगे। मुझे वो लोग चाहिए थे जो 2 हफ्ते में पूरे साल की पढ़ाई करते थे। तो मैंने ऐसे लोगों की टीम बनाई और उन लोगों के साथ में मैंने ये लेजेंड्स लॉन्च किया था। अच्छा। तो इनके साथ में जब मैं ये हर मंथ ट्रेनिंग करते थे और मैंने इनसे एक रूल रखा था कि आप ना उसके बाद में मेरे को व्हाट्सएप करो उस ग्रुप में कि व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट वाज योर टेक अवे, तो वरना तो मुझे याद भी नहीं रहेगा क्या बात हुई, आधे दिन निकल गई। सही है। तो ये एसएमई ग्रोथ फ्यूजन लगभग मेरा टाइम पूरा हो चुका था और मैं इंडिया जा रहा था। तो मेरे बराबर एक स्टूडेंट बैठी हुई थी यूके की, तो ऐसे ही बात कर रही थी और मैं उस बुक पे ही कुछ उस बुक पे नहीं, मतलब मेरी एक जनरल बात हो रही थी उनसे, तो जिक्र हुआ ऐसे ऐसे ग्रुप है मेरा। बोलते दिस इज सो गुड लर्निंग पंकज, व्हाई नॉट फॉर एवरी बिजनेस पीपल यू शेयर दिस। और मैं जा रहा था कोलकाता। कोलकाता में मेरी डॉटर इन लॉ के फादर की सर्जरी थी। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो सर्जरी थोड़ी सी बूचअप हुई और वो 15 दिन हॉस्पिटल में। अब मेरा वहाँ पे सपोर्ट में बैठने का काम था, तो मैंने उन 15 दिनों में ये पूरी बुक एसएमई ग्रोथ फ्यूजन लिख डाली। वाओ। तो मैंने इसमें किया कुछ नहीं, जो मीटिंग रूम में हुआ उन्हीं के करेक्टर्स बनाए और उन्हीं बातों को जो रियली हमारी बात हुई उनको इस बुक में मैंने लिखा है। तो दे आर लर्निंग फॉर एनी बिजनेस पर्सन। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यार मेरे एम्प्लॉय नहीं टिकते, एट्रिशन बड़ी प्रॉब्लम। अब एक और चीज़ है जैसे कि सर मेरा तो टाइम ही नहीं मैनेज होता। क्यों नहीं होता? सर जब देखो टीम का कोई ना कोई बंदा आके खड़ा होता है, सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो मैंने वहाँ पे उसको एक मंत्र दिया, धर्म का काम कर्म के बाद, कर्म तेरी टू डू लिस्ट है, धर्म तेरे एम्प्लॉय की हेल्प करना है। तो मैंने इन डिफरेंट करेक्टर्स के साथ में जो जो बात करी वो उस बुक में मैंने लिखी। तो वो बुक जो कोई भी अगर एसएमई ऑनर है उसके लिए वो बुक पढ़ ले तो उसको कहीं ना कहीं रेजोनेटिंग चैलेंजेस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वाओ। तो वो सेकंड बुक है और इसको मैंने किया कि और इजीली अवेलेबल कराई। इट इज़ अ किंडल वर्जन। अच्छा। मैंने प्रिंट भी कराई कुछ, बट अमेजोन पे जो है वो मैंने किंडल वर्जन दिया और जिन कंट्रीज में अमेजोन का प्रिंट टू ऑर्डर है वो दिया। अमेजिंग। और जो प्रिंटेड वर्जन था वो मैंने प्राइवेटली कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, वो किया, कुछ मेरे पास है अभी भी। तो दैट्स हाउ आई वेंट फॉर दैट। गाइज, वेल्थ ऑफ विजडम, वेल्थ ऑफ नॉलेज, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ गो फाइंड माई डेट्स विद एसएमई ओनर्स एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड द किंडल वर्जन ऑन द अमेजोन। अभी हमने बुक्स की बातें करी, अब हम करेंगे आपका और मेरा फेवरेट टॉपिक BNI। पहले मुझे ये फोरम यूज़ करके आपको कहना है थैंक यू। You're the first person who got me introduced to BNI, Correct. which is now become an integral part of all of our lives. All of our lives. पहले आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में। BNI जब आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए BNI से, एंड नाउ यू नो owning the entire region for yourself. Please take us through that journey. अगर आप मेरी जर्नी की बात करें तो देयर इज अ जेंटलमैन नेम उमंग भारतीय इन BNI। Yes, I know him. Courier guy, that's what I call him. Courier, Yeah. तो इनका क्लाइंट था करण सत्यनारायण विवेंडी हेयर स्पा। उसको बुलाया और उसने मीटिंग अटेंड करी, उसने देखा। अब करण और मेरा कुछ रिलेशन ऐसा है कि हम एक दूसरे को कुछ बोलते हैं तो हम मना नहीं करते कुछ। Okay. करण मीटिंग से वापस आया, बोला मेरे को फ़ोन आता है कि मैं आज एक जगह गया था, तेरे लिए परफेक्ट प्लेस है, मेरे को तो मेरे लिए नहीं सूट करी अभी, एंड नेक्स्ट वेंसडे तूने जाना है। अच्छा भाई, कह रहा है चला जाता हूँ। तो मैं नेक्स्ट वेंसडे गया एंड एक तो मेरे को ना मॉर्निंग बहुत पसंद है। मैं पूरी उम्र मतलब एज अ चाइल्ड भी सनराइज में ही उठता था और मैं जब वॉक कर रहा होता था अपने अखाड़े जाया करता था मैं, जो दंगल वाला अखाड़ा। अच्छा। तो वो जो पहली चिड़िया है वो तब चहकती थी जब मैं सड़क पे होता था। तो उस दिन मैं जल्दी उठा, वरना मैं 7:15 बजे उठना शुरू हो गया था। तो मैं उस दिन बहुत जल्दी उठा और तैयार होकर मैं निकला। तो पहली बात तो सुबह 33rd फ्लोर ऑफ ट्रेड सेंटर। अब मैं पहुंच गया बहुत जल्दी, कोई था भी नहीं, मतलब इतनी जल्दी पहुंचा। मैं वहाँ पे शायद 5:45 पहुंच गया था। Wow. तो मैं वहाँ विंडो पे खड़ा हो गया और वो सनराइज होता हुआ मैंने देखा। दैट वाज मेस्मराइजिंग। फिर ये लोग जब आए तो जो वाइब्रेंट एनर्जी रूम की थी, मैंने अटेंड किया रूम। अच्छा, मैं फाइनेंस में था तब, ये SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़, अच्छा। फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज, तो सभी क्लाइंट होते हैं। तो मैंने यार ओके, वेल्थ ऑफ क्लाइंट, दो आई वॉज नॉट इनटू सेल्स,
आई वॉज मोर इन टू द ऑपरेशंस डायरेक्टर, बट वेल्थ ऑफ क्लाइंट्स. तो मेरे से पूछा गया व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द मीटिंग. अकाउंटेबिलिटी. इससे पहले मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी एक नेटवर्क्स में गया, Okay. लेकिन वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं थी किसी भी चीज़ की. सही है. आप गए मिले, उसके बाद भाई तू कौन मैं कौन, कोई किसी को जानता नहीं. यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी थी. एंड मैं थोड़ा सा ना शुरू से कॉम्प्लाइंस वाला गाय हूँ, तो वो अगर डिस्क देखोगे तो वो सी बड़ा हाई है मेरा. ठीक है, तो हाई सी हाई डी वाला बंदा हूँ. अच्छा. तो ओके, मैंने बोला भाई ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ. एंड मेरा इंटरव्यू हुआ. सोलोमन करके एक साहब थे, वो आए. अच्छा. राजेश मीरचंदानी प्रेसिडेंट भी था उस टाइम. अच्छा. तो इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, आई ज्वाइन. अब ज्वाइन किया, जल्दी तो पहुंचता ही था, तो मैं तो जाकर के विजिटर वाला जो बॉक्स था वो खोलता था, टेबल लगाना शुरू. रोल है नहीं है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है मैं करूँगा. सही है. तो मुझे याद है जब मैं एसएमसी के लिए वीज़ा लगने के लिए बैठे थे, तो कंपनी सेक्रेटरी आई, सर क्या वीज़ा लगवाने, मैं पियोन का लगवा दूँ. बोली सर मजाक कर रहे हो. मैं भाई मुझे वीज़ा से फ़र्क नहीं पड़ता, काम जो मुझे करना है मैं करूँगा, तेरी मर्जी जो लगवा. देन दे पुट इट जनरल मैनेजर दैट टाइम. तो अभी कमिंग बैक टू BNI, तो ऐसे चलते रहे. फिर कमिटी में काम किया. अगले बार मेरे को कमिटी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, तो साजिद अंसर वॉज द प्रेसिडेंट, आई वॉज VP, और दीपा बल्लानी मेरे साथ में ST थी उस टाइम. तीनों पावरफुल लोग. नाउ दैट आई नो देम. Now you know all of that. So Sajid was vibrant. Absolutely. बिल्कुल. He's what he is. Yes. I still say I model him, I mentor, like I look up to him. बिल्कुल. Very recently हमने एक ट्रेनिंग करी साजिद साहब का, जो नया अनलिमिट्स आया. अच्छा. तो मैंने साजिद को रिक्वेस्ट करी along with Sid. They came in and did a training for my DNA group. अच्छा. उन्होंने कहा भाई Wow. let's do it. तो दीपा is always a friend. तो ये जो है सबके साथ में बड़े होते रहे. अब VP बनने के बाद में जब मैं मेंबर बना, नहीं मैं मेंबर बना वापस, तो मतलब VP खत्म हो गया तो मेंबर बन गए. मुझे तो ऐसा लगा मैं डिमोट हो गया. मैं BJ साहब के पास पहुंचा, लेकिन तब भी क्या कर रहा था कि मैं मेंबर्स देखता था पाम शीट पे. जो मेंबर्स नीचे होते थे ना, मैं उनसे 1-to-1 करता था. अगर कोई ब्लैक में है, रेड में है, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे ऊपर ले जा सकते. बीइंग अ VP मुझे पेन पता था ना नीचे वालों को, बिल्कुल. तो मैं उनको हेल्प करना शुरू हुआ. और मतलब ये सेल्फलेस था. रोल तो है नहीं, मेंटोर कोऑर्डिनेटर भी नहीं था, मेंटोर भी नहीं था, लेकिन तब भी कर रहा था. फिर मैं BJ को बोला मेरे को 1-to-1 करनी. गया, उनको बोला मेरे को तो लग रहा मैं डिमोट हो गया, क्या करूँ. तो व्हाट यू वांट टू डू. वो बोले एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग शुरू हो रही है. अच्छा. तो ही ट्रेंड मी एज एन एम्बेसडर. नाइस. और मैं एम्बेसडर ट्रेनिंग हुई. BNI कॉन्टिनेंटल मुझे चैप्टर दिया गया, जो उस टाइम काफ़ी स्ट्रगल में था. अच्छा. करीब 18 या 19 मेंबर्स के पहुंचा हुआ था. अभी तो थ्राइविंग चैप्टर है वो. इज डूइंग वेरी गुड. यस. तो वहाँ से मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया. तो वहाँ भी मैंने क्या किया, मुझे याद है कि मैंने देखा काफ़ी मेंबर जो हैं ग्रे में ही रहे. मैंने उन मेंबर्स को रिक्वेस्ट करी, कैन यू मेक अ ग्रुप, आई विल कम आफ्टर एवरी मीटिंग, आफ्टर योर मीटिंग कैन यू स्पेंड 45 minutes with me, I'll mentor you, I'll handhold you. तो वो जब मैंने किया तो वहाँ से मुझे LT का भी बाय इन मिला कि यार अजीब पागल आदमी है, सुबह भी नहीं आ रहा है, ब्रेकफास्ट पे भी नहीं आ रहा है, मीटिंग के ख़त्म होने के टाइम पे आ रहा है. और मैं उनका वो मेंटोर किया. तो वहाँ से थोड़ा बाय इन मिला. बड़े अच्छे रिलेशन है वहाँ पे. एक मैडी है, संदीप भाटिया होते थे. तो मतलब ये मेरे को ऐसे बोलते यार तू ज्ञान मत दे हमें. ठीक है. तो बट दे हैव रियली सीन मी इवॉल्विंग, क्योंकि पहला रोल था. अब वहाँ पे बहुत जल्दी मुझे एम्बेसडर से DC बनाया गया, क्योंकि आई थिंक सोहेल और सुहेब वॉज अ जेंटलमैन हु वॉज अ DC एंड ही वॉज मूविंग टू कैनेडा. तो ये चैप्टर को पहले साल में फास्टेस्ट टर्न अराउंड अवार्ड मिला. दैट वॉज माई अवार्ड. बट उसके साथ में एक अवार्ड में ज़रूर जिक्र करूँगा कि जो मैंने रोल छोड़ने के बाद में इंसोम्नियक्स के अंदर में सेल्फलेसली मेंबर्स के लिए किया, बिलीव मी व्हाट यू डू सेल्फलेसली इज रिकग्नाइज्ड. BNI इंसोम्नियक्स का गिवर्स गेन अवार्ड जीतना वॉज समथिंग वेरी इमोशनल फॉर मी. इंसोम्नियक्स में पूरा एक स्टार ग्रुप होता है हमसे आगे, मतलब
गुड और बैड बट होता है। और जब वो अवार्ड अनाउंस हुआ, मैं अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोच सकता था कि मेरे को वो अवार्ड मिला। दैट वॉज लाइक समथिंग क्लोजेस्ट टू माई हार्ट जब वो अवार्ड मिला। कि अब देखें क्या होता है कि आप दुनिया से सम्मान प्राप्त कर सकते हो, अपने परिवार में, अपने ग्रुप में पहचान सम्मान मिलना वो हमेशा एक बड़ा चैलेंज होता। ठीक है? सही बात है। तो गिवर्स गेन अवार्ड जब वहाँ पे मिला तो उसके बाद मैं शायद पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह। ठीक है, उसी साल कह लें कुछ ऐसा था कि मेरे को ग्लोबल पे डॉक्टर आइवन माइजनर हर साल 7 फाउंडर्स अवार्ड देते हैं। उनमें से आई एक रिसीव्ड वन ऑफ दैट अवार्ड Wow. एज अ कोलैबोरेशन। वाह। सो दैट वाज इन पोलैंड, मेरे को अवार्ड मिला था। वाह। बस पोलैंड से वापस आया तो बातचीत बीजे से चल रही थी। बीजे को बोला अच्छा व्हाट इज़ नेक्स्ट। मैं 3 चैप्टर्स को एज अ डीसी सपोर्ट कर रहा था एट वन टाइम। वाह। वॉरियर्स को मैंने ट्रेन किया पूरा। ट्राइटॉन एक चैप्टर था उस टाइम। तो मैं बीजे को बोला व्हाट इज़ नेक्स्ट। बीजे बोलता लॉन्च कर। मतलब बीजे यार तेरे को मालूम है मेरे लॉन्च करने से ही मेरी हवा टाइट होती है, मेरे से लॉन्च नहीं होता। विजिटर मेरी वीकनेस है। तो सी दैट इज़ नेक्स्ट ना। वीकनेस है तो वीकनेस को जीतना ही तो नेक्स्ट है। तो अच्छा मुझे पता लॉन्च की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है। और मेरी केवीटी से एक बार मैं जानता था, तो मैंने कहा केवीटी कहीं ट्रेन कर रहे हैं। मुझे बोला जयपुर में ट्रेनिंग है नेक्स्ट वीक। आप गए? मैं बोला आई एम गोइंग। आई वेंट देयर 3 days ट्रेनिंग। मैं वो ट्रेनिंग करके आया। BNI ग्लैडिएटर्स मैंने लॉन्च किया। वाह। और जब लॉन्च किया उसी टाइम में हमारी बात हो गई थी कि मैं ये रीजन खरीदूंगा। रीजन खरीदने के लिए मुझे फिर जो है इंसोमनिक्स को छोड़ना पड़ा एज अ मेंबर। बट तब तक एक अच्छी चीज़ हुई, जो करण मेरे को लेके आया था ना, मैंने उसको मेंबर बना लिया था वापस। दैट्स अ वेरी बिग विन। मैं उसको बोला कि नहीं तू सिर्फ इसलिए ज्वाइन करके तू मेरे साथ 3 घंटे बैठेगा। ठीक है, लेकिन वो फाइनली मैं निकल गया। बोला अभी मैं किसके साथ बैठूंगा, तू सबके साथ बैठे ना, अभी क्या। तो अभी हम बहुत हंसते हैं। मैं करण को आए दिन बोलता हूँ, मैं कुणाल को चिढ़ाता हूँ, मैं तू इसको ट्रेन कर दे फिर मैं इसे अपने रीजन में ले जाऊंगा। ठीक है, मैं वो टीजिंग है। लेकिन देखिए मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं करण को हंसता हूँ कि ना इंश्योरेंस है शैली के लिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू संभाल लियो आके। तो वो मतलब हंसते हैं हम लोग आपस में बहुत। वी आर वीकली टुगेदर, वी प्ले गोल्फ टुगेदर करण एंड मी। तो मतलब छेड़ा खानी चलती रहती है। बट गुड फॉर हिम ऑल्सो, इट हैव बिकम पैटर्न लाइफ। BNI में एक बार आप आ गए और आपने एक बार आ गए ना, टिक गए, तो फिर BNI लाइफ बन जाती बिल्कुल बिल्कुल। जीता जाता एग्जाम्पल अभी कह सकती हूँ मैं। है। बस इसी तरीके से मतलब आप समझें कि बढ़ते चले गए एक रीजन। अब अच्छा हुआ भी क्या कि जब मैं ग्लैडिएटर लॉन्च होने वाला था ना, कोविड आया। अच्छा, टफ पीरियड। हमने इमीडिएटली लॉन्च किया। यू विल नॉट बिलीव, आई साइंड माई फ्रेंचाइज ऑन July 20th इन मिडल ऑफ कोविड। वाह। एंड पीपल कॉल्ड मी, पंकज तू पागल हो गया। यस। ऐसे यार मुझे एक बात मालूम है कि जब परेशानी होती है ना तो इंसान को पकड़ता है, उससे दूर नहीं भागता। और BNI एक सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे हम सब साथ हैं, इतना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैंने वो लिया। एंड मैंने कोविड के दौरान में एक पहला BNI का ऑनलाइन चैप्टर लॉन्च किया, BNI यूनाइटेड। कंप्लीटली ऑनलाइन चैप्टर, फर्स्ट कंप्लीटली ऑनलाइन चैप्टर ऑफ UAE। वाह। दैट्स व्हाट आई लॉन्च्ड। ये तो मेरे को ना ये SMC से आदत पड़ी थी। जब DGCX का कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता था एक्सचेंज का, तो ये एक टैग होता था, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किसने ट्रेड किया। तो वी यूज टू ट्रेड द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे भी नई नई चीज़ें करता गया। फिर मैंने बस फिर करते चले गए, जर्नी चलती चली गई। 8 चैप्टर मैंने लगभग 2 साल के अंदर में 8 चैप्टर पे मैं पहुँच चुका था। वाह। अब उसके बाद में 1 साल मैंने कोई चैप्टर लॉन्च नहीं किया। 2025 में मैंने एलिवेट लॉन्च किया है। 24 में मैंने लेजेंड्स लॉन्च किया था। 23 वॉज अ ईयर जहाँ पे मैंने कोई लॉन्च नहीं किया। ठीक है, तो अब लॉन्चिंग जो है वो एक प्रोसेस हो गया, चल रहा है अभी भी। लाइक आज भी शाम को एक और चैप्टर है BNI हारमनी। अच्छा। उसका कोर ग्रुप इंफॉर्मेशन सेशन चल रहे हैं। ओके। और शायद
मैं वो भी बड़े अलग तरीके से चल रहा हूँ। आई हैव नो टीम, कोई लॉन्च टीम नहीं है। मैं किसी मेंबर से जाके नहीं मांग रहा कि भाई तू मुझे मेंबर दे दे। लेकिन मैंने अभी एक काम किया, लास्ट मंथ मैंने अनाउंस किया कि मेरे रीजन में 4 चैप्टर हैं ऐसे जो 30 मेंबर से नीचे हैं। अच्छा। और मेरे को यह है कि ये सब 30 से ऊपर होने चाहिए। इट इज़ गुड, हेल्दी। तो मैंने एक अनाउंसमेंट करी है कि इफ़ एनी ऑफ मेंबर ऑफ BNI देरा रीजन, और अभी आपके साथ हूँ और आपने बोला कि क्या रीजन ही है, हाँ। कि एनी मेंबर हु इंडक्ट्स अ मेंबर इनटू 4 chapters of my region which are below 30, which is accelerate, elevate, energy and legends, by or before 30th September, जो टर्म एंड है, आई विल होस्ट अ डिनर फॉर देम। एंड होस्ट अ डिनर मतलब ये नहीं है कि मैं मील बाय करूंगा, आई विल कुक फॉर देम। वाओ। तो कल शिरीन जी ने मुझे, पंकज सीरियसली आर यू गोना कुक इट? तो मैं, शिरीन जी, बाइंग अ मील इज एन एटीट्यूड, कुकिंग फॉर यू इज अ ग्रेटिट्यूड, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू शो। और इसमें एक आगे ट्विस्ट डाला मैंने। अच्छा। अभी एक किया तो ठीक है, अब कोई कहे यार मैंने 2 कर दिया, अब 2 बार तो खाना नहीं खाएगा बेचारा। तो एक काम करते हैं, जो 2 कर सकता है ना वो डिजर्व करता है कुछ बेटर। तो क्यों ना मैं उन्हें SME ग्रोथ फ्यूजन में 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीट दूँ। वाह। मतलब मैं उनको हेल्प करूँगा उनके बिजनेस के चैलेंजेस के लिए फॉर अ ईयर। मंथली एक सेशन हाफ डे होगा जिसमें SME ग्रोथ फ्यूजन में जितने भी लोग होंगे वो साथ में आएंगे, एंड इन अ मॉडरेशन एंड कोचिंग स्टाइल आई विल हेल्प देम फाइंड सॉल्यूशंस फॉर देयर बिजनेस प्रॉब्लम। तो वो 1 साल के लिए मेरे साथ रहेंगे। थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करते हैं पंकज जी। लेट्स टॉक अबाउट SME ग्रोथ फ्यूजन फॉर सो मेनी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस हु आर न्यू इन बिजनेस एंड स्टफ लाइक दैट। कैसे हेल्प मिलेगी हमको ज्वाइन करके? एक चीज़ समझें जी। जब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो मैंने अपने लिए नहीं करा, ठीक है। तो जब मैंने BNI लिया तो मैंने नीरू शर्मा जी को अपना एग्जीक्यूटिव कोच लिया। ओके। और मुझे ये पता है कि एक एग्जीक्यूटिव कोच को रखने से हेल्प तो मिलती है यार। बिल्कुल। कहीं अटकता है ऐसे में, आप बात तो कर लेते हो, कोई है आपके साथ ठीक who है, can guide तो you? कोई मेरे साथ है। तो बिजनेस में, SME में जो है बहुत सारे लोग हैं, कहीं पे माइंडसेट का चैलेंज है और कहीं पे कॉस्ट का चैलेंज है। लगभग 3,000 दिरहम से नीचे मंथली एक सेशन भी कोई नहीं देता, ठीक है। 3,000 दिरहम की कॉस्ट आती है। अब हर बंदा या तो वो कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता। तो अगर मैं इनको ग्रुप में ले लूँ, ठीक है, मान लीजिए 10 लोगों का एक ग्रुप, 10 लोगों से बड़ा ग्रुप नहीं रखूँगा, और वो 3,000 की जगह 300 हो जाए, वेन्यू कॉस्ट मान लो 150-200 हो जाएगी आधे दिन का, या तो 500 रुपये हो जाए। तो मैंने इसका मॉडल बनाया था 7,000 दिरहम साल का। ओके। ठीक है। तो बेनिफिट वो सारा मिलेगा जो एग्जीक्यूटिव कोच सिंगल रखने से मिलता है। लेकिन जैसे होता था जब हम पढ़ते थे तो ट्यूशन भाई अकेले नहीं अफोर्ड कर सकते, 6 बच्चे मिलकर पढ़ लो, सही है। वहाँ अफोर्ड हो जाएगी। सही है। तो इस तरीके का ग्रोथ फ्यूजन आया। अब आप सोचें, मैं अभी आपसे पूछूंगी करंटली आपके बिजनेस में क्या चैलेंज है, कौन सा ऐसा चैलेंज है जो आप डिस्कस करना चाहोगे। अब आपने वो चैलेंज थ्रो किया। अब मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इतने बिजनेस, इन सब ने मुझे सिखाया। तो जो मैंने सीखा है, और विद माय कोचिंग हैबिट्स, और जो मैंने इतने सारे एक्रेडिशंस करे, मैं तो हर साल एक करने के चक्कर में रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखने में मुझे हर साल ऐड करता हूँ। तो उस सब से मिला जुला के, और जो रूम में विजडम है उसको यूज़ करते हुए सॉल्यूशन निकलेगा। अमेजिंग। तो वो सॉल्यूशन मिले। बहुत अच्छा है पंकज जी। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, और मोर कमिंग फ्रॉम पर्सनल स्पेस, बिकॉज मैं भी उस जोन में हूँ वेयर आई एम लुकिंग फॉर अ कोच। 5 years इन बिजनेस, आपने थोड़ा 0 to 5 कर लिया है, लेकिन अब आपको यू नीड समबडी टू गाइड यू। तो आई वेंट थ्रू दिस लास्ट 1.5 years ऑफ जर्नी ऑफ फाइंडिंग द कोच फॉर माई सेल्फ। कुछ हैं बिजनेस कोचेज, लाइफ कोचेज, मोर सो एग्जीक्यूटिव कोचिंग एंड स्टफ लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द पीपल टॉक इन थ्योरी। आप जब ट्रेन करते हैं अपने लोगों को, क्या आप सेल्स पे बात करते हैं? क्या आप KPIs पे बात करते हैं? क्या आप इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ कि रियल ग्रोथ इज हैपनिंग? उसके बारे में बताइए। लेकिन ना मैं आपकी सेल्स पे बात करूंगा, ना मैं KPI पे बात करूंगा, ना मैं इन्वॉल्व होऊंगा। अच्छा। मैं तो आपसे पूछूंगा आपकी प्रॉब्लम क्या है,
और आपसे ही आंसर निकलवाऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम का आंसर क्या है। अच्छा। क्योंकि मेरा एक मानना है, प्रोएक्टिव में मेरे को एक चीज़ सिखाई गई थी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज क्रिएटिव एंड होल। आप पूरे हो अपने आप में, आपको किसी की अफर्मेशन की जरूरत नहीं है, आप क्रिएटिव हो, ठीक है, आपको नॉलेज है, बस कहीं आप अपने पर्सपेक्टिव में अटके हो। तो मुझे वो धूल हटानी है। मैं आप कह सकते हो वो झाड़ू मारने वाला इंसान हूँ, मैं धूल हटाऊंगा, मुझे धूल हटानी आती है, आपके ख्यालों से, आपकी सोच से धूल हटानी आती है। और जब धूल हट जाएगी ना तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मतलब मैं बड़े अजीब अजीब से सॉल्यूशन दूंगा आपको, आप हंसोगे सुन के। अच्छा। अभी मान लो आपके ऑफिस में आप मेरे को कोई एक प्रॉब्लम बताओ, आप कोई भी प्रॉब्लम आप बताओ। सेम जैसे मैं अब टीम है मेरी फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है 18 लोगों की मेरी टीम है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम जो है वो अभी भी ग्राउंड लेवल पे जा रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ टीम ऑफ 18 पीपल। ठीक है, इस तरह की मेन प्रॉब्लम है। तो बताइए। आपने बोला मेरा ग्राउंड लेवल पे जा रहा है, तो मैं आपसे फौरन ये पूछूंगा, अच्छा मुझे स्ट्रक्चर बता, हिरार्की बता, और मैं ये पूछूंगा कि कौन कौन सी चीज़ आपकी टेबल पे अप्रूवल के लिए वापस आती है। पता है प्रॉब्लम क्या है? डेलीगेशन नहीं है। सही है। हर चीज़ आपको आदत है, एसएमई की खास तौर से प्रॉब्लम है, वो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। ठीक है, मैंने सबसे पहले जब छोड़ा था, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने शैली को ये बोला कि कोई भी कागज मैं पढ़ूंगा नहीं, जो तू मेरे सामने लाएगी मैं साइन करूंगा। आई ट्रस्ट इन यू। मे बी बिकॉज वो शैली मैम थी। उन्नति को भी यही बोला, वो तो मेरी ईए थी। बिल्कुल। मैं कागज पढ़ूंगा नहीं। अगर तूने कुछ गलती लिखी है, तू गाली लिख के ले आ मेरे क्लाइंट के लिए, मैं साइन करके दे दूंगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट को पता है मैं उसे गाली नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, मुद्दा यह है कि अगर मैं डेलीगेट करूंगा तो मुझे ये पता है कि उसमें रिस्क कितना है। ठीक है, और ये मैं सही बताऊं किससे सीखा है, ये आइवन माइजनर साहब से सीखा है मैंने, कि जब आप डेलीगेट करते हो थोड़ा सा रिस्क है, उस रिस्क को असेस करते हुए स्टेप बाय स्टेप डेलीगेशन करनी। एंड डेलीगेशन भी इज अ चैप्टर इन माय बुक बीइंग। अमेजिंग। आपको एक सिंपल बात बोलता हूँ, आप ड्राइव करती हैं या ड्राइवर है? ड्राइवर है। ड्राइवर है ना। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो ड्राइव करते हैं दिन में 2 घंटे? बहुत लोग। ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं वो? नहीं। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वाले कितने ड्राइव कर रहे हैं? 3,000 दिरहम का ड्राइवर आता है दुबई सही में। बात है। ठीक है, और आप 35,000 दिरहम के बंदे पीछे बैठे हो। आप अगर 2 घंटे रोज गाड़ी चला रहे हो, 40 घंटे आपने गाड़ी चलाई, 40 से भी ज़्यादा चलाई आपने, चल 40 मान लो, 5 वर्किंग डे की आपकी कॉस्ट कितनी है ये बताओ मुझे। सही बात है। 5 वर्किंग डे की कॉस्ट निकाल लो। अब मुझे बताओ ड्राइवर उससे सस्ता है या महंगा है? बिल्कुल अब सस्ता। फिर मुझे ये बताओ कि अगर वो 40 घंटे आपने बैक सीट पे बैठ के फ्री कर लिए और अपने मैसेजेस और प्लानिंग और आइडिएशन में खर्च लिए, तो आप ड्राइवर के 3,000 की जगह 10,000 कमाओगे, नहीं कमाओगे? बिल्कुल कमाओ। तो आप नेट में लॉस कर रहे हो। सही बात। कर रहे हो ना। अब मुझे ये बता दो, ये थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है। बस मैं ऐसे ही बात करूँ। मुझे मेरा आंसर मिल गया पंकज जी। आई थिंक कितना भी वी कैन गो endlessly talking about, because मेरे सामने बैठे हैं wealth of wisdom, wealth of knowledge. So बहुत interesting, and I would request you to join us again in the next talk show. But before you go, मेरे quick सवाल हैं for our community. There are a lot of SMEs sitting out there. जो small medium based है, maybe micro small है, maybe medium है but struggling है and all of that. Pieces of advice for them. देखिए, मेरे फादर एक कहावत यूज करते थे, मैं वही बोलूँगा, भाई सुनो सबकी, लेकिन एनालाइज करे बिना इस्तेमाल मत करना। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक माइक्रो एसएमई मेरे साथ बैठे हुए थे, डेलीगेशन की बात हो रही थी, उनको समझ आ गई, वो बोली मैं ना एक मैनेजर हायर करने वाली। तो पहले उन्होंने मेरे को बोला कि, मैंने कहा आपका क्या टारगेट है? कहती है मैं 30,000 पे पहुँचना चाहती हूँ। कि अभी कहाँ हूँ मैं? 20 पे हूँ। अच्छा, तो ये डेलीगेशन की बात हुई, उन्होंने कहा अच्छा मैं डेलीगेट करना चाहती हूँ। कि अच्छा कितने का मैनेजर लोगे? क्या 8,000 का तो आएगा। तो मतलब आप जो 20 पे हो वो 12 पे हो गए। अब मुझे ये बताओ आप कितना टाइम फ्री करोगी मैनेजर से? मैं दिन के 3 घंटे तो फ्री कर लूँगी। ओके, वेरी गुड।
इन 3 घंटों को इस्तेमाल करके 24,000 का रेवेन्यू मॉडल मुझे दे दो, 8,000 अलाउ करूँगा बाय करना आपको। Wow. बिना वर्किंग के स्टेप मत लो कि आपने एक रील सुन ली कि डेलीगेट कर दो और आपने और अपना खर्चा बढ़ा लिया। पहले उसका प्लान भी तो बनाओ कि ये मैं 8,000 इसको दूंगी, 3 घंटे फ्री करूंगी, महीने में मेरे 90 घंटे फ्री हुए, इस 90 घंटे से मैं 30,000 कैसे बनाऊंगी। वो प्लान जब सामने हो रेडी तो फौरन जा कर के मैनेजर हायर करो, लेकिन बिना प्लानिंग के खर्चे मत बढ़ाओ, एसएमई में खास तौर से। वाह, एक बात बताइए, एक लाइन में बताइए या 2 लाइन में बताइए कि क्यों किसी को बीएनआई ज्वाइन करना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। हम सब कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। कंफर्ट जोन से बाहर पैर रखोगे, सीखना, पढ़ना, लिखना बिजनेस बाय प्रोडक्ट है, वो तो सबको आ रहा है। आपको नहीं आया तो ये मान के चलना कि या तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो या आपको अपना काम करना नहीं आता। आई थिंक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे आपसे आगे बातचीत करने में। मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि अगर मे बी फ्रॉम बिजनेस कोचिंग पर्सपेक्टिव या फिर इंस्पायरिंग ऑथर्स जो आजकल आ रहे हैं वो आपसे सीख सकते हैं कि कैसे दे कैन गेट इन टू ऑल ऑफ दिस। एक किसी भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए, बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए तो वेल्थ ऑफ विजडम एंड नॉलेज है आप, तो कैसे दे कैन रीच आउट टू यू? मैंने बताया, मेरी जो साइट है, मतलब मैं नंबर दूं उससे बेहतर है www.pankajgupta.me। Guys, note करिए www.pankajgupta.me. It's also on the screen below for all of you. मन तो नहीं है कहने का, बट कहना तो पड़ेगा पंकज जी कि I'm sure you have a hectic day and you'll have to move from here. But it was such a pleasure, honor to have you on my show. Wonderful. And Thank you. I would love a round 2 and check your availability because there is so much more to talk and Definitely. educate the community upon. Definitely, we can. Thank you so much for your time, Pankaj. Thank you. Thank you very much. So guys, that was Mr. Pankaj Gupta, the director at SMC, the executive director of entire Dera region, an author, a business coach, and there is so much that you can learn from him and his journey. It was a pleasure to host him today, and stay tuned because more such entrepreneurial journey coming your way.